Before we start today's session, there are some prerequisites which I kind of posted as well. So I will send it again in the group chat. Please refer to them and do it. Alright, so I have seen the API key details, and today मैंने कोई PPT prepare नहीं की है. We will just directly jump onto the coding part. एंड हम आज पीपीटी से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे रेफर करेंगे, द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो लेट जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद इट. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. Alright, so I need to close up a few programs. Just a second. Yeah. So before हम कोई प्रोजेक्ट बनाएं या फिर कुछ भी करें, let's just discuss today's agenda. So बीच में I was supposed to take day 5 I believe, and on day 5 we were supposed to do function calling with OpenAI. And I was also supposed to teach you guys how to build a project. So the project which we will be building today is kind of an AI workflow, right? Which, if hosted independently and if given the proper database, it can be called as an AI agent. So what that particular project will be doing is that it will have access to the time zones, live time zones, because किसी भी LLM को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है टाइम जोन का. अगर आप जीपीटी से भी पूछोगे तो इट विल जस्ट स्क्रैप द डेटा फ्रॉम द गूगल या फिर कोई भी वेबसाइट से, जो भी टाइम वाली वेबसाइट्स होती है वहाँ से. And it will utilize the email sending functionality of Python, which is not Python की functionality नहीं है. It is another topic in its own, that is called SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. And there is an open source वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कि जूम कह लो, आप जूम कह लो, गूगल मीट कह लो, टीम्स कह लो, उसका ही एक ओपन सोर्स वर्जन, जिटसी. राइट. सो व्हाट इट एक्चुअली डज इज दैट अगर आपको इस पे कुछ भी एक कैलेंडर इनवाइट बनाना है या लेक्चर से कोई भी मीटिंग बनानी है, सो उसके लिए आपको अकाउंट चाहिए ही नहीं होता. इट इज़ कम्प्लीटली ओपन सोर्स. You can directly make up a meeting room with a very unique name and a unique link, and आप वो किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो. So we will be also creating a meeting. So I believe this gives you a general overview. So what actually the project will do is that it will take the latest time zone जो भी हम उस पर input करेंगे. For example, if our prompt is like schedule a meeting for 7 p.m. tomorrow and invite a particular person with a particular mail, मतलब उनकी हम mail ID भी डालेंगे, mail to it. So it will take the latest time zone of that particular person's region. या फिर अगर हम कोई special region देंगे तो फिर उसका time zone उठाएगा. It will use the email sending functionality of Python, and it will send the meeting link to that person. So I believe that agenda is quite clear, and ये थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है डिपेंडिंग कि हम, मतलब मैं कितना जल्दी जल्दी उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो नाउ देयर इज एन ऑप्शन. आइदर मैं फंक्शन कॉलिंग और विद ओपन एआई और प्रोजेक्ट को अलग अलग करके समझाऊँ, या फिर मैं प्रोजेक्ट प्लस फंक्शन कॉलिंग करूँ. अगर मैं इफ आई टीच इट सेपरेटली देन इट विल require for a separate extra session. So now it depends on you guys. What exactly do you want? आप एक और सेशन में आने में इंटरेस्टेड हो? बिकॉज अगर आप एक और सेशन में आते हो जो प्रॉपरली सिर्फ प्रोजेक्ट प्लस फंक्शन कॉलिंग के ऊपर बेस्ड होगा, यू विल गेट अ चांस टू एक्सप्लोर दिस इंटायर कॉन्सेप्ट. अभी वाली जो मीट होगी वो थोड़ी सी छोटी रहेगी, एंड सिंस ओपन एआई की एपीआई की है, यू कैन ऑल्सो प्ले अराउंड विद इट योर सेल्फ. अगर ये एक ही मीटिंग में ऑल टुगेदर अभी ये करना है तो सेशन भी लंबा जाएगा, एंड हो सकता है कि
people कुछ लोगों को रीवॉच करना पड़े. तो you guys have to take a vote now कि अलग अलग करना है या एक साथ. Please write it in the chat box. There are 30 people here, so I believe अगर 5 से 10 भी बता देंगे, so we will proceed with the meeting. Guys, I've put a poll on the group. If you don't want to type, you can't type here. Just answer, react to that poll very quickly. Alright, so everybody is voting for separate session. ठीक है फिर अभी it will hardly take 20 minutes to wrap the topic of function calling with OpenAI. So I guess let's started with it. Close the email अब इसका need नहीं है. Anyway, so function calling, right? क्या कोई मेरे को यहाँ पे बता सकता है? Can anybody please tell me that if you write this to chat GPT, तो like मैं अगर एक इनकॉम अरे just open an incognito window. So if I write this to ChatGPT, so a quick voting via the meeting emojis. क्या ये prompt मेरा email भेजेगा या फिर क्या ये prompt work करेगा? Will ChatGPT be able to send an email to the designated email address? Exactly. नहीं भेज पाया. Right. So what if, right, what if this particular function जो मैं कह रहा हूँ कि write an email and send it to this particular email address about a meeting tomorrow, what if it works, right? Because आपने Instagram रील्स पे, LinkedIn पे बहुत सारे AI agents देखे होंगे. Like there are people making AI agents जो उनके behalf पे meetings attend करते हैं, right? So अब LLMs की built-in capability में तो वो possible नहीं होता. LLM का क्या काम होता है? It just predicts the next word of the entire sentence, right? So इसी चीज को टैकल करने के लिए what researchers, specifically the OpenAI guys, came up with was function calling. So मैं quickly बस एक Google search करूँगा. I will send the link as well. Function calling with Azure OpenAI, since we are using Azure OpenAI. And for the people who are wondering कि OpenAI और Azure OpenAI में क्या फर्क है, there is no difference at all, right? It is just कि OpenAI की अगर आप API की परचेज करते हो तो you would have to use OpenAI वाले मॉड्यूल के रैपर्स. अगर आप Azure के पोर्टल से OpenAI की परचेज करते हो तो you would have to use Azure OpenAI रैपर. That's the only difference दोनों चीज़ों में. So this is a very big documentation. I request Abhishek or Meher to send it in the group. So basically अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो Azure OpenAI के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इवन फाइन ट्यूनिंग भी है. सो दिस इज मोर Azure ओरिएंटेड कि Azure पे एक AI फाउंड्री है जहाँ पे आप AI रिलेटेड वर्क कर सकते हो. हमारे टॉपिक आज वो नहीं है तो वी विल जस्ट इग्नोर दिस. बट इफ एनीबडी इज लर्निंग Azure OpenAI,
over here and आपको ये सब भी एक्सप्लोर करना है, you can ask Abhishek, right? He will provide you with the API key or the links and everything. Anyway, so हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें सीधा आना है कोड पे. So we have a very big code, right? So as per this code, हमको क्या करना होता है कि like जैसे अगर if anybody has explored machine learning till now, तो you would know बहुत सारे फंक्शंस रेपिटेटिव होते हैं, राइट? तो ये इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रेपिटेटिव होगी एंड एक जेसन टूल स्कीमा है उस जिसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा. बट बिफोर वी डायरेक्टली गो इनटू द कोड, थोड़ी सी थ्योरी एंड टू बैक दैट थ्योरी आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ पीपीटी जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से या फिर गूगल अलॉन्ग साइड बाय साइड. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. एनीवे, सो जो फंक्शन कॉलिंग है, द इट हैज़ अ वर्ड कॉल्ड फंक्शन, राइट? If LLM has a function, अगर कोडिंग के हम पर्सपेक्टिव से देखें, if I have coded a function, वो फंक्शन ये करता है कि वो मेरे बिहाफ पे ईमेल भेजता है दूसरों. देयर आर ईमेल जनरेशन एंड सेंडिंग कोड्स आउट देयर. अगर मैं पाइथन में एक चीज क्या कहते हैं सर्च करूँ, या सॉरी सो अगर मैं पाइथन में सर्च करता हूँ पाइथन SMTP लाइब्रेरी. सो बिफोर SMTP का एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. एग्जैक्टली SMTP क्या होता है. ये आई बिलीव सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में नेटवर्किंग सब्जेक्ट आता है, थर्ड ईयर में आता है. उसमें यू गाइस वुड रीड अबाउट इट या आपने अपनी 10th क्लास में CS में पढ़ा होगा. SMTP इज बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर सेंडिंग ईमेल्स अक्रॉस द इंटरनेट. और भी सारे मतलब कि TCP प्रोटोकॉल अपने आप में भी एक ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल हो सकता है, बट द मोस्ट प्रेफर्ड या फिर लाइक जैसे मोस्ट ईमेल ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज SMTP, राइट? सो सिंपल सा इसमें एक थोड़ी थोड़ी सी नेटवर्किंग की थ्योरी क्विकली इसमें जाएंगे हम. सेंडर जो होता है वो SMTP के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है rather than directly sending a request to the internet or the recipient. पहले सेंडर से होकर ईमेल सर्वर पे जाती है SMTP पे. SMTP के सर्वर पे वहाँ पे वेरीफाई होती है कि आइदर द मेल इज सिक्योर्ड और नॉट. हमने वेबसाइट्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है HTTP एंड HTTPS, राइट? तो सेम में एक कॉन्सेप्ट होता है TLS का एंड नॉन सिक्योर्ड मेल्स का. TLS/SSL मेल्स जो होती है वो सिक्योर्ड तरीके से प्रोसीड करती है एंड जो नॉन सिक्योर्ड मेल्स होती है वो आपके स्पैम में चली जाती है, आपके जंक में चली जाती है. एंड अगर आप कभी ध्यान से पढ़ो वो स्पैम और जंक की ईमेल्स के ऊपर जो एक हेडिंग दी होती है, इट विल ऑलवेज से आइदर दैट कंटेंट वाज नॉट सेफ या फिर जिस सर्वर से ईमेल आई है वो सर्वर सेफ नहीं था, राइट? तो we will be so this is like a very generic example of simple mail explanation of simple mail transfer protocol, right? So Python की एक लाइब्रेरी है SMTP lib. So it is supposed to send emails on behalf of us. If I open Geeks or Geeks का entire thing, so we have a Python का छोटा सा code, right? So what this code is supposed to do is that this will send the data to another email using our email. और हमारी email कैसे use करेगा? We will need to provide the our email ID and password. Right. So this is a function. This is a coding language के basis पे अगर हम कोड के हिसाब से एक पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. बट अगर मैं ऊपर डेफ लगा दूँ एंड पैरामीटर्स डाल दूँ तो दिस कैन बी अ फंक्शन. So how does a LLM like ChatGPT can get access to this particular function, right? LLM क्यों नहीं भेज पा रहा email? What is its shortcoming, right? पहली चीज, it is not configured that way. Understood कि LLM का काम होता है guess करना, predict करना बहुत सारे text या the next word. But उसके बाद हम इसको कोई tool नहीं पकड़ा सकते या फिर हम इसको एक function like can't we provide it the adequate amount of tools and functions to proceed? We can definitely do that. And उसी पूरी चीज को हम function calling कहते हैं. So function calling basically means that when you give access of various different tools या फिर कोडिंग के हिसाब से functions to an LLM जहाँ से वो बहुत सारे task कर सकता है. For example, if I have a function, right, which marks my attendance in my office का group every day at 8, right? उस फंक्शन के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है कि मेरे ऑफिस की जो चैटिंग एप्लीकेशन है उसकी API कॉन्फ़िगर्ड है
and it is supposed to send it at 8, but with a different message every day. So LLM will generate a message, LLM will trigger that response, and अगर मेरा message daily 8 बजे पहुंच रहा है and every day it is a very unique message, so that is an AI workflow, right? And AI workflow को बनाने के लिए ही हम function calling use करते हैं. So function calling के concept में कोई doubt so far, anyone? If no doubt, please react with thumbs up. All right. So I believe आप लोगों ने ओपन एआई पे जो है डिटेल्स भेजी थी वो नोट डाउन करनी होंगी किसी नोट पैड पे, या फिर आप लोगों के व्हाट्सएप ओपन होंगे आई बिलीव. तो लेट जस्ट क्विकली मेक एन एम्प्टी फोल्डर. जो लिनक्स और मैक पे है उनको तो समझ आ जाएगा, बट जो विंडोज पे जस्ट क्विकली मेक अ फोल्डर एंड उस पर आप विजुअल स्टूडियो कोड खोल लो. अरे यार. Alright. So once your Visual Studio's code is open, यहाँ पे I believe majority of the people attended last day कंचन का session. So कंचन told something related to Python virtual environments, I believe. Right. So Python virtual environment basically एक kind of एक not a framework but एक Python की सुविधा है. Let's just say एक उसकी kind of facility है जिससे हम हर एक फोल्डर को एक अलग virtual environment बना सकते हैं जिसमें various type of modules belong करें. Now, why I am using Python for virtual environment in this, that when you use Linux, right? So you need to make virtual environment for everything. So Linux आपको globally allow कर देता है install करना, but due to some shortcomings of it, वो detect नहीं कर पाता. बट विंडोज में ग्लोबली सब कुछ, अगर आप विंडोज के टर्मिनल पे पिप इंस्टॉल करो एंड किसी भी फोल्डर में जाके उस एग्जैक्ट लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो, इट विल वर्क. सो दिस इज समथिंग कम्प्लीटली ऑप्शनल. आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट. इफ यू डोंट वांट टू तो देन ऑल्सो दैट इज अप टू यू. मैं चैट बॉक्स में मीटिंग चैट बॉक्स में कमांड्स जो होगी वो मैं पेस्ट करता जाऊंगा. सो टू मेक एनी पाइथन का वो वर्चुअल इन्वायरमेंट, सॉरी, पाइथन and then okay. Source. ठीक है, ठीक है. सो इट इज एक्टिवेटिंग. ये मैंने प्रीवियस कमांड उठाई है फ्रॉम अ रिवर्स सर्च लुकअप. अगेन अ वेरी लिनक्स नर्डी थिंग इट इज, तो आप इग्नोर कर सकते हो ये कमांड. इफ यू वांट टू यू कैन रन इट, एल्स आप विंडोज का जो ग्लोबलाइज्ड ओपन एआई मॉड्यूल है वो तो यूज कर ही पाओगे. तो दिस इज द कमांड विच यू हैव टू रन इन द फोल्डर. एंड आपका ये अब एक पाइथन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट इज रेडी टू यूज. एंड हाउ टू कंफर्म कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है. सो टर्मिनल के पीछे आपका वेन वो लिखा आ जाएगा, VENV. This will indicate that your virtual environment is ready to go. And once you have done it, आपको कुछ नहीं करना, आपको pip install OpenAI as it is कर देना है and it will quickly install that. So यहाँ तक किसी को कोई doubt? It's setting up the Python virtual environment. Yes, Sanya, you can use the Jupyter notebook for this as well. If your virtual environment is prepared, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. Just please react thumbs up if you have understood everything so far. All right. So
हम हमारी जो अभी सेशन की एजेंडा है, बट टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ को एग्जैक्टली समझ रहे हैं, right? तो हम आप सब इसी लिंक पे जाओ एंड start importing like copy pasting every piece of code here turn by turn, and वो turn by turn कैसे करना है वो I will tell you that. So firstly we will copy the only the inputs from here. एक आप नई Python file बना लो. I will simply call it main.py. Once you have made this Python file, आपको इनको import करना है, and इस हर import का एक use case है in the code जो हम आगे copy करेंगे. So I will explain you that as well. सो जेसन का जो यूज केस है कि जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो या फिर लाइक जैसे आप एलएलएम को एक वो देते हो, फैसिलिटी देते हो कि दीज आर द अवेलेबल टूल्स विच यू कैन यूज, राइट? तो उनकी जो डेफिनेशन होती है दैट इज डन बाय जेसन टूल स्कीमा. लाइक इसको एआई के टर्म्स में जेसन टूल स्कीमा कहते हैं. एल्स इन अ वेरी नॉर्मल डेवलपर टर्म इट इज जस्ट कॉल्ड जेसन स्कीमा, राइट? सो स्कीमा का क्या मतलब होता है? तो स्कीमा basically refers to a structure, a fixed structure of anything, right? So JSON schema and JSON क्या होता है? JSON बहुत ही easy words में, जिसको नहीं पता JSON क्या होता है, अगर आपने Python के डिक्शनरीज के साथ वर्क किया, so it is not a JSON, but आप एक illusion में समझ सकते हो कि that is a JSON type, right? So JSON example we will quickly see as well. So this is what a JSON is. It is a dictionary having key value pairs, या फिर a dictionary having a key and उसकी वैल्यू अपने आप में एक दूसरी डिक्शनरी होगी, जैसे यहाँ पे एड्रेस है. तो दिस इज अ जेसन स्कीमा जहाँ पे आप चीज़ें डिफाइन करते हो, राइट? एंड आई गेस दिस इज अ यूजर डेटा का जेसन स्कीमा. सो जेसन स्कीमा में किसी को कोई डाउट? Do you understand the concept of JSON or the JSON schema? If yes, please react thumbs up. यहाँ पे टाइप कर दो. हाँ, ऑलराइट. सो अब हमको क्या करना होगा? हमको ना, जैसे आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन द फंक्शन फॉर मॉडल, एंड एक बहुत ही बड़ा सा जेसन का कोड लिखा हुआ है. सो दैट्स व्हाई वी नीड द मॉड्यूल जेसन फॉर इट. अब जो हमारा वो है Azure, मैंने आपको बताया था कि ओपन एआई एंड Azure ओपन एआई रैपर्स आर डिफरेंट, राइट? बिकॉज हम एपीआई की हमने Azure के प्लेटफॉर्म से लिया. So I guess this is kind of self-explanatory that OpenAI का API client configure करना है via Azure, so we need that this particular library. And Rajat Prem is asking, can we use TOML instead of JSON? you can use TOML except of JSON, but आपको फिर उस तरीके से कोड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. बट yes, you can use all the default जो like OpenAI की खुद की है, Azure OpenAI की खुद की डॉक्यूमेंटेशन है, it always will tell you to use JSON, right? आप TOML में यूज कर सकते हो, बट आपको इवेंचुअली उसको JSON में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स हैं दे आर सपोज टू टेक इट लाइक JSON. सो यूज कर सकते हो, बट वहाँ पे जाकर आपको जेसन के अंदर ही उसको डालना है. एनीवे, तो अब ये जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसको हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे एज अ रेफरेंस ही मान रहे हैं. सो व्हाट दिस एग्जांपल इज सपोज टू डू दैट जब भी एलएलएम से लाइक व्हेनेवर यू आस्क एलएलएम दैट टाइम, राइट, तो वो टाइम बता दे एग्जैक्टली. अब अगर मैं जीपीटी में I will open a very fresh instance of GPT. Tell me time of Paris months. Right. ये बहुत ब्लैक मैजिक हो गया, ब्लैक हो गया. ओके, सो ये इसके मैं कोड दे दिया, बट so this is the most accurate time I can give based on the latest data I have, right? So let's see if Paris में भी क्या टाइम हो रहा है. It is 12:07 PM and इसने दिया है 19, that is 7:30 बजे. So you can see that ChatGPT के पास like live time zone का access नहीं है. It is just a very great layer which is
confident enough कि वो आपको इस सवाल का जवाब दे देगी, but when it comes to technical things your set data set के बाहर it will eventually you know kind of crash with that and it says कि 6-15 तो ये तो टाइम है वो तो दे दिया anything so moving so मेरे पास I had to prove a point that LLM is not that smart अगर आप सिर्फ उसको एक perspective से देखते हैं that can complete the assignment and fix your code then it is very smart but उसके अलावा LLM is not that smart तो उसको smart हमें करना पड़ेगा by giving it adequate amount of tools and functions so हमको टाइम चाहिए तो उस टाइम को फॉर्मेट करने के लिए these are the Python की libraries तो individual library का प्यार सबसे फिर टू डी issues also else you can just follow along okay so now we have initialized the essay or right जो मैं हमारा कोड भेजा था ये chat में भेजा था इसके पहले आप so WhatsApp पे भेजा था just copy that particular piece of code This is GPT photo. Right. So So now moving forward with the documentation. The documentation is like that I find it advantage to use for chat application. Chat issues. So आपको इसको कॉपी करना है इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि हमारा मॉडल का नेम और हमारे मॉडल को वर्जन क्या है राइट तो हमारा मॉडल है दैट इज GPT-4 बस GPT-4 लेते हैं आगे दैट इज जस्ट ऑल केस हम इसके पूरे टाइम से लेके और गेट द टाइम फंक्शन we will just simply copy the entire thing and let's just try to understand ये क्या कर रहा है पूरी कर क्या so हमारे पास एक जोन का डेटा है this is the word on the category class so जो जितनी कड़ी चीज है like जैसे लोग not like but serial can do the bad by documentation तो इन सब टाइम जोन होते हैं ना टाइम जोन भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंक्लूडेड होते हैं जैसे जापान जो है वो एशिया का वर्ड्स आता है राइट तो एशिया स्लैश टोक्यो इंडिया का अगर आप टाइम जोन जानते हैं तो वो इंक्लूडेड हो टाइम जोन एशिया स्लैश एशिया स्लैश टोक्यो एंड सिंस कोलकाता दिस इज पहले से पहले कोलकाता को कैलकुलेट करने का इस्तेमाल हुआ था एंड एवरी टाइम जोन की तभी डेफिनेशन हुआ था तो कोलकाता को आगे से इसलिए स्लैश वाला बता सकते हैं यदि तो यहाँ पे बोले तीन कंट्रीज हैं कैपिटल जब जापान का टोक्यो एंड यूरोप का खा लिया and this is just a simple different definition की अगर इन तीनों में से कोई स्टेट बोली जाती है तो उसमें सैन फ्रांसिस्को पेरिस आता है और अगर ये करंट टाइम फंक्शन एज अ टूल यूज होता है तो आप ये वाले टाइम जो है इंपोर्टिंग ये वाली होता है so now we have a function of find date current time या फिर location area and location will be this Tokyo या San Francisco या Paris. So what exactly this function does is that it takes the location. Right. It takes the location. अपने definition में location देता है. तो उसको ये value lower कर रहा है. Okay. There is the definition for case sensitive prompt से location है तो उसको lower कर दे रहा है. Makes sense. And then it is kind of going in a loop. So ये particular क्या करता है ये particular loop इन की values को parallel करके match करता है right. So अगर हमारी जो location है location is let's say Paris. So if key in location lower
So if E, yeah, Paris, right. So जो E है, let's just say हमारी पेरिस भी एक ही है, और हम हमारी जो लोकेशन है वो भी एक पेरिस है, राइट. So if Paris and Paris हमेशा पे ट्रू रहेगा, right. बिकॉज अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स को एज एन एरे कंसिडर करें, तो अगर 1 2 3 का एक एरे है और एक 1 2 3 का एक एरे है, तो if 1 2 3 in 1 2 3 it prints something, so it will print something because वो eventually true हो रहा है, right. So हम अगर हमारी जो लोकेशन है वो हमारे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में आ जाती है, so it will proceed with the further actions, and उसमें क्या it is printing the time zone type को print कर दिया. Now this is date time module and zone info module का play around, कि उन्होंने बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम को जो फेच हो रहा है उसको फॉर्मेट कर दिया, राइट. सो वो पायलट कुछ कुछ सजेस्ट कर रहा है, वो आई एम जस्ट ग्रैबिंग इट, द करंट टाइम इज स्पेसिफाइड टाइम जोन, राइट. एंड फिर उस चीज को सेम वे में रिटर्न कर दो. रिटर्न क्या हो रहा है, लोकेशन एंड उसका करंट टाइम. अगर ये नहीं चलता, लेट जस्ट से अगर मैंने बोल दिया दिल्ली पूछ लिया, दिल्ली तो है नहीं डेटाबेस में, इसका डेटाबेस का है उसके जेसन में टोक्यो एंड सैन फ्रांसिस्को इज ओनली प्रेजेंट एंड पेरिस इज प्रेजेंट, नॉट दिल्ली. So if I insert the Delhi का time zone change, तो it will just clearly say no time zone data found for Delhi. So then it will return the current time to be unknown. So ये जो particular function है, it is just there to tell कि अच्छा ये city mention हुई है, this city resides in my database and इसका time zone also resides in my database, and I have to return a formatted time for it to the user. यहाँ तक किसी को कोई डाउट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. दिस इज बेसिकली एन एक्सटर्नल टूल जो हम अभी हम एलएलएम को देंगे. सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यू कैन जस्ट रिएक्ट विद थम्स अप इफ नो डाउट. ओके, सो एक बहुत ही बड़ा फंक्शन हम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, एंड इसमें टू मच डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बिकॉज जब आप एलएलएम्स के साथ वर्क करना सीखोगे देन इट इज ओनली रिक्वायर्ड, which indirectly means when you will either go towards LangChain and RAG वाली side, then you would need to understand कि एक एक फंक्शन क्या कर रहा है. बट फॉर नाउ अगर आपको एक बेसिक ये वर्कफ्लो बनाना है, आई डोंट थिंक सो इट इज मच नीडेड, बट आई विल क्विकली कवर इट. इनके कमेंट्स में भी उसी हिसाब से कमेंटिंग इन्होंने करी अपने डॉक्यूमेंटेशन में. एनीवे, सो if so the first line says initial user message. So the initial user message इसका सिंपली ये मतलब है LLM से आप क्या, LLM को क्या प्रॉम्प्ट दिया है आपने. आपने या तो क्वेश्चन दिया है या तो इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट. सो इट सेज the role user, basically user is providing sending a message to LLM, and it उसका message का content है what's the current time in San Francisco. So यहाँ से वो मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है. So the message is sent. Then we have the main thing जिसके जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन बेस्ड है, that is tools and the JSON schema, and ये बस इतना ही है. So एक basically whenever you want to define a function, right, an external function to an LLM, आपको उसको एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड करना पड़ता है टू दैट LLM, ताकि LLM को ये पता रहे, LLM इतना अवेयर रहे कि यार अच्छा ओ आई हैव दिस टूल एज वेल, राइट. सो दिस इसका जो बेसिक डेफिनेशन टाइप है वे है वो यही है. rather than explaining you कि ये क्या कर रहा है, I will make a small function आपके साथ ही एक और, and I encourage you to make it. वरना if you just want to understand then you can also not make it, right. So ये पता नहीं कुछ तो से कर रहे हैं, तो anyway, okay. So हमारा जो टूल है, टूल का टाइप क्या है, टूल का टाइप हमारा फंक्शन है. So we will simply give a key value pair of function. हमारा जो फंक्शन है, तो फंक्शन एक की है जिसके अंदर डिक्शनरी है, ठीक है. तो इसका बस यही मतलब है कि नाउ हमको ये डिफाइन करना है कि वो फंक्शन क्या करता है. सो फर्स्टली बाय गिविंग इट्स नेम आई विल जस्ट सिंपली राइट, देखो नेम में हमेशा आपको वो वाला नेम देना है जो आपने प्रोग्रामेटिकली भी डिफाइन किया. इसमें लिखा है डेफ करंट टाइम, राइट. सो आई विल जस्ट क्विकली मेक ओके बाद में बनाते हैं.
सो इसका हम नेम रख देंगे कलर, और rather favorite color, right? अब हमने नेम रख दिया. अब now we have to give a description. It tells about the favorite color of the user, right? या फिर यूजर की जगह आई विल जस्ट राइट माई नेम, आप अपना नाम लिख सकते हो. सो एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर पहले से स्टोर होगा कि मेरा फेवरेट कलर क्या है. And एक टूल है, क्योंकि देखो एलएलएम को नहीं पता ना व्हाट इज माय फेवरेट कलर. अगर मैं एलएलएम को ये इनपुट देता हूँ दैट व्हाट इज रजत's फेवरेट कलर, एलएलएम विल फेल टू नो बिकॉज ना वो एलएलएम की मेमोरी में है. बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमारा एक मेमोरी एंड चेनिंग पे सेशन हुआ था दैट एलएलएम समटाइम्स स्टोर्स द डेटा एज वेल, राइट. उसके पास तो है नहीं, तो अगर उसका कोई टूल भी होगा तो इट विल जस्ट फेल टू रिस्पॉन्ड टू मी कि मेरा फेवरेट कलर क्या है. ये चीज़ हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे. आप लोग फिलहाल के लिए इसमें अपना नाम डाल दो, right, which will tell you the favorite color about yourself. And parameters में आपको बस इतना डालना है टाइप, ओके ये सॉरी को पायलट नहीं यूज़ कर रहा है इस चीज़ के लिए. पैरामीटर्स नाउ, अब पैरामीटर्स का क्या मतलब है. अब जैसे यहाँ पे गेट करंट टाइम में लोकेशन मांगी गई है, सो दिस इज अ पैरामीटर, राइट. तो हमें उस पर्टिकुलर पैरामीटर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो इफ आई राइट पैरामीटर्स एंड इफ आई राइट टाइप, तो उस पैरामीटर की क्या टाइप होगी. इट विल बी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो बेसिक्स, प्रॉपर्टीज, कलर, राइट. टाइप इन्होंने बोल दी स्ट्रिंग, द डिस्क्रिप्शन रख दिया एरे. दिस इज व्हाई आई हेट ऑटो कंप्लीट. एनीवे, सो प्रॉपर्टीज में पहला जो हमारा वेरिएबल होगा जो हमको इनपुट लेना है दैट इज कलर. उस कलर का क्या मतलब कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या टाइप होगा, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग. एंड उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा, वही दिस दिस यू कैन नॉट कंप्लीट द फेवरेट कलर ऑफ रजत, राइट. सो नाउ हमारे एलएलएम के पास दो फंक्शन आ चुके हैं, एंड बट व्हाट दीज बोथ फंक्शंस आर सपोज्ड टू डू इज इंटायरली डिफरेंट. एक टाइम जोन बता रहा है, टाइम बता रहा है, और एक मेरा फेवरेट कलर बता रहा है, राइट. सो वंस आप ही लोग ये समझ गए तो पूरे सेशन का आपको एक जिस्ट मिल गया कि आपको एलएलएम को एक टूल अवेल करवाना है, राइट. अब हमने इसके अंदर डाल तो दिया कि एक टूल है फेवरेट कलर करके, एक फंक्शन है फेवरेट कलर करके, उसको हमें कोड भी करना पड़ेगा. सो फॉर दैट सिंपली एफ फेवरेट कलर, सिंपल. आपके को पायलट में कुछ सजेशन आ रहा है, आप ले लो. आपका को पायलट ही कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, सिंपली कॉपी पेस्ट दिस कोड, एंटर योर नेम एंड यू आर गुड टू गो. एंड बट डू कीप इट above द रन कॉन्वर्जेशन वाला फंक्शन, राइट. सो द फेवरेट कलर का बेसिकली एक लॉग स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है. सो ये मैथमेटिकल लॉग नहीं है. लॉग मतलब हर चीज़ का जो ऑडिट लॉग होता है, यहाँ पे ट्रैकिंग रखना कि क्या क्या हो रहा है, तो उसकी एक प्रिंट स्टेटमेंट. एंड इट विल रिटर्न दैट माई पर्टिकुलर कलर इज ब्लू, राइट. सो मूविंग ऑनवर्ड्स, तो अब हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, हमारे टूल्स डिफाइन हो गए. Now it the documentation has given us a few things, and इसमें हमें डीप में नहीं जाना. इसमें हमें बस सिंपल से इतना समझना है दैट एपीआई को कॉल किया गया, किस मॉडल से कॉल किया गया वो हम दे चुके हैं. उसको क्या मैसेज प्रोवाइड किया गया, हमारा जो मैसेज होगा उस एपीआई पे क्या कौन कौन से टूल्स या फंक्शंस अवेलेबल है वो, एंड उनकी जो चॉइस है वो ऑटो है. सो इसका बेसिकली ये मतलब है दैट जितने भी टूल्स अवेलेबल है एलएलएम के पास, एलएलएम हैज़ द फ्रीडम कि वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके उनमें से कोई भी टूल उठाए और यूज़ करे. अगली अगली जो ये सारी कोड लाइन्स है, दिस इज बेसिकली टू टेल यू दैट आपको मॉडल का जो प्रोसेस है वो कहते हैं रिस्पॉन्ड सॉरी सो द इंटायर कॉन्वर्जेशन जो है मॉडल के साथ आपको वो प्रोसेस करनी है. आपको उसके रिस्पॉन्स मैसेजेस प्रिंट करने हैं एंड मॉडल का रिस्पॉन्स प्रिंट करना है, एंड आपको फंक्शन कॉल्स भी हैंडल करनी है. सो हमने डिफाइन तो कर दिया, हमने उन फंक्शंस को इंडिविजुअली रख भी दिया कि कौन सा क्या कर रहा है, बट हमको एलएलएम को एक स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा कि चलो आपके पास ये फंक्शन तो है बट आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे, राइट. सो दैट इज व्हाट आल्सो वी हैव टू टेल द एलएलएम टू डू. सो इफ रिस्पॉन्स मैसेज डॉट टूल अंडरस्कोर कॉल्स बेसिकली ये बताएगा कि अगर टूल की कोई किसी भी टूल या किसी भी फंक्शन की कॉलिंग हुई है तो ये हो, तो क्या होगा. तो फॉर टूल कॉल इन रिस्पॉन्स मैसेज डॉट टूल कॉल्स, बेसिकली एलएलएम
अपने इंटेलिजेंस के ऊपर बैकएंड करने के लिए this these two code lines exist and अगर उसका फंक्शन का नेम है गेट करंट टाइम तो ये हो जाए राइट तो इसको अगर हम समझे तो बेसिकली लोड कर ली सारी आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी हमने देख ली राइट उसका रिस्पॉन्स भी हमने ले लिया लोकेशन एंड हमने मैसेज डॉट अपेंड कर दिया बेसिकली प्रोसेस हुआ एंड रिटर्न कर दिया इन वेरी इजी वर्ड्स राइट एंड एक फाइनल रिस्पॉन्स क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट के थ्रू हमने प्रोवाइड कर दिया सो अब इसको हम ऐसा कुछ समझने वाला ही नहीं है ना बेसिकली टूल्स की यू अंडरस्टैंड वालों कोड के लिए वो करेंगे सेम चीज सो नाउ लेट मी क्विकली यार मैसेज हमारा मैसेज क्या है हम मैं इसको ओवरराइट करके पूछूंगा हाय हाउ आर यू डूइंग वेरी सिंपल क्वेश्चन रन किया ओके सो अब यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सो दिस इज एग्जैक्ट जिसमें ready to help you. How about you? How are you doing today? Right. So this is the response given to us by LLM, and एक log print हुआ है which says no tool calls were made by the model. Right. अब इसको हम थोड़ा और क्लीन कर सकते हैं बट वी विल नॉट डू इट क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से एज इट इज उठाया हुआ कोड है तो वी विल नॉट मेस अराउंड विद इट वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको भी और मेरे को भी सो इस दैट हमने नहीं किया सो नाउ अगर मैं अपने कंटेंट को आई विल एडिट एंड टेल आई विल आस्क टेल me the current time of let's just say Tokyo and if I run it then it is supposed to use that particular function and it did so हमारे पास मैसेज नहीं आया नन आ रहा है ड्यू टू सम रीजन मे बी मैंने आधा अधूरा कोड बिकॉज द करंट टाइम इन सैन फ्रांसिस्को या करंट टाइम इन टोक्यो इज ये आना चाहिए था बट मैंने कोई चेंज किया है या आधी अधूरी चीज़ लिखी है तो आई विल फिक्स इट बट इनफ टू यूज द टूल्स और या फिर फंक्शन जो हमने उसको दिए वरना ये भी हमारा प्रिंट ना होता राइट टाइम जोन फाउंड फॉर टोक्यो तो इसको कैसे पता चला कि हमने टाइम जोन का फंक्शन दिया है क्योंकि हमने वो डिफाइन कर रखा है सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन कॉलिंग इज अब मैं इसको यहाँ से आई विल मैं पूरा एज एंड सिंपली पेस्ट इट जस्ट एंड रन इट I mean, it should work now. Hello, Rajat. Is your network stable now? I suppose there's a network issue from the side of Rajat. We should just wait 1 or 2 minutes. It will be all right, guys.
Yeah, hi, am I audible? अभिषेक, Yes, yes, you're audible. कहाँ तक हो गया था, एक बार रिपीट करना. Basically, I'm sorry, last में actually ना your voice was like too much, like बहुत ज़्यादा buffer हो रही थी. So last वाला part wasn't clear much. Okay, so okay, just a second. Is my screen visible? Yeah. या सो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स तक तो समझ आ गया था ना, जब वो नन आउटपुट कर रहा था एवरीवन, या फिर ये पूरा ही दोबारा समझाऊँ? No, ओके everyone's thumbs up reacting, so I guess it was clear. ओके ओके, अंडरस्टैंड. या सो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू एट द एंड, जब मेरा इंटरनेट गया एंड यहाँ से एपीआई कॉल भी पूरी नहीं हुई, दैट आई मिस समथिंग व्हाइल कॉपिंग, राइट, इसलिए वो एंड में नन दे रहा था, या फिर मैंने कोई चेंज कर दिया था. बट इफ़ यू कॉपी दिस इंटायर कोड एज इट इज़ एंड अगर आप उसमें एजर ओपन एआई की जो डिटेल्स है वो डालो, तो आपको ये आउटपुट आएगा जिसमें इट इज़ सेइंग दैट द करंट टाइम जोन, करंट टाइम इन सैन फ्रांसिस्को इज 3:26 सही है, जो कि बिल्कुल ही गलत ही दे रहा है, बट ठीक है. और इसमें क्या गलत आ गया? ओके ओके, नहीं नहीं, गलत नहीं दे रहा. आई मीन उस टाइम तो कुछ और दिखा रहा था गूगल, बट ठीक है. 3:29 AM, राइट. सो हम इसको दोबारा रन करेंगे एक बार एंड इट शोज 3:29 AM. सो इट वर्क्स. So the entire concept of function calling या tooling, you can say, is that you can, avail बहुत सारे tools, external tools and functions to your LLM, and आप उस उनसे वो चीज़ें करवा सकते हो. So the next session which I am planning on was using this function calling only, जिसमें तीन फंक्शंस होंगे. एक टाइम कलेक्ट करेगा, टाइम जोन के हिसाब से टाइम चूज करेगा. एक फंक्शन ईमेल भेजेगा एंड वन फंक्शन विल बी स्केड्यूलिंग द मीटिंग लिंक. सो फिर वो एक मल्टी फंक्शन कॉलिंग का एग्जांपल आ जाएगा. अभी हमने बस एक सिंगल फंक्शन कॉलिंग का एग्जांपल देखा. सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इफ यस प्लीज आस्क, वरना आई गेस वी विल एंड टुडे का सेशन. यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया तो प्लीज रिएक्ट विद थम्स अप. ऑलराइट, अभिषेक. All right, guys. I suppose everyone has understood properly about the function calling in API using API. So I have something to ask. Should I tell about the project submission and the certificate criteria in today's session, or should we cover it in the next session? Guys, please answer in the comments. All right. Uh, First of all, I would like to thank Rajat for such an amazing session, and his session was scheduled till today only, but due to the great response, he has extended one more session for another project on multifunction calling using API. So, Rajat, thank you for that. या आई एम ऑल्सो प्लानिंग एक और चीज़. दिस इज समथिंग जो सेशन के हल्का सा बियॉन्ड जाती है. सिंस नाउ सबके पास ओपन एआई की key है, एंड जो यहाँ पे नहीं भी है, बिकॉज डे वन पे 80 लोग थे, अभी सिर्फ 26 लोग हैं, दैट टू इंक्लूडिंग अस. तो हाउ अबाउट वी डू अ कॉम्पिटिशन जहाँ पे यूजिंग दिस एपीआई की, या फिर इसको मैं डिलीट करके नहीं बना लूँगा, नो नो इशूज एट ऑल. यू मेक अ प्रोजेक्ट एंड द बेस्ट प्रोजेक्ट गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की गुडीज, क्योंकि मेरे पास कुछ पड़ी तो हुई है लास्ट सेमेस्टर से. इफ यू वांट टू यूज इट, अभिषेक, यू कैन. दिस इज For जस्ट sure, we can do the contest, guys. Okay, should we do the contest part? पोल करवा लो इफ पीपल आर इंटरेस्टेड. Okay, let me just put up a poll very soon. एंड डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही रात में आपको बना के देना है. 2 दिन या 1-2 दिन का तो टाइम होगा ही होगा.
एक पोल डाल दो बस. I put up a poll. Guys, please check the group and react to the poll ASAP. I suppose most of you are interested in the contest part. So if we are going with the contest, then we'll have to plan out the details accordingly, and the criteria for the certificate might also change accordingly. So I suppose it will be best if we announce that in the next session only. Is that fine by everyone? All right, that's great. So if you have any other doubts, you can ask. Otherwise, we can end the session. All right, I guess there's no doubts. Thank you guys. Thank you for coming to the session, and you guys can leave now. Thank you, Rajat, as well.